both are new today, and well, we shall wait a bit for others to join, and then उसके बाद हम लोग start करते हैं. Till then, let's have a few conversation. All right, Eamon, I would like to hear from you. Will you please tell me about yourself? Assalamu alaikum, ma'am. Alaikum assalam. Ma'am, I am appearing in this CSS exam, written exam, Okay. and I was involved in case in 2020 session. Okay. Yes, ma'am. And are you looking forward for IELTS preparation or spoken English? What's your major concern? Ma'am, basically, I am a student of MPhil literature already. Okay. And are you looking forward for further opportunities in abroad, or what's your requirement? What do you want to learn? What's your हर एक का कोई ना कोई मोटो होता है, like कोई यहाँ पे आइल्स की प्रिपरेशन के लिए आ रहा है, कोई स्पोकन इंग्लिश की को इम्प्रूव करना चाहता है. So what is your concern? Ma'am, I want to improve spoken English. Okay, Eamon, rate yourself out of 10. What do you think, at what point you stand actually on a scale of 10? I think 7. Okay. I think 7 is a good score, by the way. And have you appeared in the screening test of CSS this year? Yes, ma'am. I have qualified that test. Okay, good to know about that. And you are having CSS preparation from the KIPS Academy? Yes, ma'am. Okay, so how's your preparation going on? It's going good. Okay, and are you a native of Lahore? No, ma'am. I am a resident of Vihari, but my university from where I am doing MPhil is in Lahore. Okay, and in which university you are enrolled? Rifa International University, Raivan Campus, Lahore. Okay, sounds good. All right. Hi, Komal. How are you? Okay, Komal just joined in a bit, तो हम अफनान से थोड़ी सी बात कर लेते हैं. Hi, Afnan. Afnan, can you hear me? Uh-oh. Afnan, आप थोड़ी नजर आ रहे हो किसी को, आ रहे हो या आ रही हो? I don't even know the gender. I'm sorry. One of my cousins is a male whose name is Afnan, and one of my students' name is Afnan. She's a girl, obviously. So, इसलिए मुझे confusion है कि आप कौन हो. I'm sorry. ओहो, okay, sorry. खदीजा तो आप बोल देती हैं, sorry. Okay, all right, Khadija, how are you? Khadija Tariq. Okay. Komal, would you like to speak? देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग सब चाहते हैं कि हमारी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव हो. सो कैसे इम्प्रूव होगी? जब तक आप बात नहीं करेंगे, जब तक आप बोलेंगे नहीं. हाउ कैन आई कम टू नो अबाउट यू पीपल? हाउ कैन वी हैव कम्युनिकेशन? हाउ कैन वी हैव वन टू वन कॉन्वर्सेशन? जब तक आप खुद ट्राई नहीं करेंगे, तब तक. अभी तो मैं सिर्फ जस्ट जनरल क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, वो भी जो बेसिक क्वेश्चंस है विच आर आस्क्ड बाय एनीवन इन अ डे. लाइक आप किसी भी अननोन बंदे से मिलोगे तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वो आपसे ही आपके बारे में पूछने वाला है, दैट हु आर यू, वेयर डू यू लिव, और what are your qualifications and all. इस तरह के क्वेश्चन. तो ये तो बेसिक्स हैं. तो आपको इस तरह का जवाब, ओके फाइन, अगर आपको इसमें भी थोड़ी सी हेजिटेशन हो रही है बोलने में, सो यू पीपल कैन एक्चुअली कैन से, मतलब आप उर्दू में थोड़ा सा जवाब दे दें बाद में, जब वंस यू फील कंफर्टेबल, तो आप लोग भी बोल सकते हैं. आई थिंक कोमल का थोड़ा सा इंटरनेट का भी इशू था, शी जस्ट लेफ्ट इट. ऑलराइट, सो हियर वी हैव अनदर स्टूडेंट व्हिच Faik Ali. Faik, how are you?
ओके, अच्छा स्टूडेंट्स, हम लोग Hey, अब ma'am. आजकल, ऑलराइट, रीना ने सेंड के मेरे से बात कर ले तब तक. ओके, हाय रीना, हाउ आर यू? I'm fine, thank you. How are you? I'm great as well. Thank you for asking. How are you doing, Reena? What were you doing today before the class? I was working on for my research work. Actually, I'm doing my master degree from China, so I still have a need to write down my thesis. So I was working for my research. All right, and are you currently living in China as well? No, I'm not living in China. I'm in Pakistan. I'm living near Jhelum city. Okay. Yeah. Mm-hmm. So, did you perform your research in China or did you perform your research in Pakistan? No, actually, I was in China from last 3 years, but right now I have to come back to my country because um, I want to do some work here. So I still have my research work. I still have 6 months for Mm-hmm. getting my degree. So that's why I'm here. All right, Reena, is your master's of 3 years? No, actually, my master's is 2 years master's, but 1 year I have to learn Chinese language. Mm-hmm. So I learned Chinese language for, first year, and now it's my master degree. All right, Reena, I would like to hear from you. How did you feel about the Chinese language? Did you find it easy? No, it's really hard, but I love to learn Chinese language. That's why I got very good score in Chinese. So actually, Okay. I like to speak Chinese language. Maybe that's why, but it's really hard. You know, it's the difficult language in the whole world. Yes, I Chinese language. know that it is one of the most toughest languages. I know about that. I have Yeah. also done diploma in the Chinese language back in Wow. 2016, but I'm not a fluent speaker of Chinese. I don't even know how to say things in it. I'm so bad at it. I don't. I just found it interesting. I just found it to do something new in those days. And yes, I took admission in the Oriental College of Languages, and to my surprise it was one of the bad decisions, I must say. I didn't enjoy it at all because it was so hard to learn. मेरे ख्याल में हम कल भी इस बारे में मैं डिस्कस करी थी कि चाइनीज लैंग्वेज के इतने ज़्यादा करेक्टर्स एंड येस ऑफ कोर्स आई नो सम ऑफ द ओपिनियंस इन इट, बट वैसे मुझे चाइनीज लैंग्वेज का कोई इतना कोई खास क्रेज नहीं है. मे भी आप पाकिस्तान में थे और इसलिए सीख रहे थे, तो इसलिए आपको ज्यादा मुश्किल लगी। मे भी आप चाइना होते तो आपको ज्यादा मजा आता सीखने में। Probably this might be the problem, but the point is the instructor from whom I learned Chinese was also Chinese. Her name was Basima, and yeah, बट बट द पॉइंट इज कि वो जो माहौल होता है ना एक लैंग्वेज लर्न करने का, आई कुडंट फाइंड दैट थिंग इन इट, बिकॉज ऑब्वियसली वहाँ यहाँ पर सारे जो हैं पाकिस्तान में दे आर यूजली उर्दू मीडियम और पंजाबी स्पीकिंग इंडिविजुअल्स. सो यस, वो मोड ऑफ स्पीकिंग नहीं था, बट येस इट वॉज वन ऑफ द टफेस्ट थिंग्स इन माई लाइफ विच आई लर्न. वेल, आई एम सीइंग कि सारे गायब हो गए हैं, पता नहीं जैसे क्या हुआ है. एनीवेज, लेट्स जस्ट बिगिन आवर लेक्चर. You know, when I was in China, I used to speak Chinese language there. But when I came back to my home country, then I got married with my cousin, and he's British, so I Okay. again I need to speak English. So I find it a bit hard for me Uh-uh. Okay. because I'm from Chinese to English again. Oh my god. It's okay. But of course, it can be one of your expertise now. Okay, you know about the Chinese language, and somehow my screen got stuck, and I'm not able to operate it. Um, it says Microsoft Edge is not responding. I hope it gets fixed immediately.
Oh, sorry, I forgot to unmute my mic. All right, can you people see the presentation? All right, students, so we will be discussing few things related to spoken English first of all, so that all those students who are actually concerned कि हम spoken English की चीज़ों में क्या चीज़ें cover करेंगे, उसको पहले हम लोग कुछ चीज़ों को discuss कर लेते हैं. Then we'll begin with our today's task जो हम लोगों को class में करना है. So the things which this presentation will be covering is how you can improve your English. ठीक है. So firstly, there are some of the rules which you need to know for that. So the first one is you have to be patient, because obviously students learning जो है एक ऐसा process नहीं है. It's not about learning English language only, that you need to be patient for that. Anything you are learning, probably if you're learning cooking, if you're learning to play video games, if you're learning something like any kind of outdoor sports or anything, so you need to be very patient for that, because you cannot just learn it over a night. ठीक है, या कुछ थोड़े से ड्यूरेशन में आपने उसको लर्न करनी है. इट्स नॉट लाइक दैट. आपको उसके लिए ऑब्वियसली प्रॉपर एक कुछ सीक्वेंस ऑफ इवेंट से गुजरना पड़ता है. आपको उसके लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है. तो और इंग्लिश जो है वो तो वैसी एक लैंग्वेज है, और आपको एक लैंग्वेज सीखनी है, आपको उसमें एक्सपर्टीज आनी चाहिए. एंड ऑफ कोर्स यू नीड टू लर्न अबाउट एवरी स्मॉल डिटेल्स अबाउट दैट, बिकॉज वेन एवर यू कन्वर्स हैव अ कम्युनिकेशन इन उर्दू, ठीक है, विद समवन, तो आपको पता है कि उर्दू में कहाँ पर हमने किस तरह से लोगों के साथ बात करनी है, हम लोगों ने क्या चीज़ कैसे बोलनी है, किस वर्ड पे हमने स्ट्रेस देना है, किस वर्ड को हमने तोड़ के बोलना है. और साथ ही साथ आपको इस बात का भी पता है कि लाइक हमारे फेशियल एक्सप्रेशन उसमें कैसे आएंगे. तो इंग्लिश में जब आप कोई चीज़ सीख रहे हैं, जैसे लेट्स सपोज वो एक लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज, तो ऐसा नहीं है ऑब्वियसली पहले तो आप बिल्कुल ही ब्लैंक रहोगे, या बिल्कुल ही आप कह लें कि एक बुत नहीं होता, जैसे एक स्टैचू होता है, आप उसकी तरह बिहेव करेंगे, या आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी स्ट्रक्चर है, बॉडी जो मूवमेंट है, वो बिल्कुल उस टाइप की होगी. आप बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे करके बैठे हुए हैं और आपसे कोई बात कर रहा है तो आप उसका जवाब दे रहे हैं, लाइक यू आर टोटली स्टैचू इन फ्रंट ऑफ दैट पर्सन ऐसा. लेकिन जब आप उर्दू में किसी से बात करते हैं, यू मूव योर बॉडी, यू मूव योर हैंड्स एंड यू मेक द बॉडी मूवमेंट्स लाइक दैट, क्योंकि आप उसमें बिल्कुल ढल के उसमें बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं. तो ऑब्वियसली जब आपने इंग्लिश सीखनी है, आपको ये सारी चीज़ें उसके साथ साथ आएंगी, ठीक है, और आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा पेशेंट होना पड़ेगा, बिकॉज यू नीड टू लर्न. आप वहाँ पर कुछ सीखने जा रहे हैं. एंड इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि आपको समझ आ गई है तो इसका मतलब आपको इंग्लिश आ गई है. बोलना इज समथिंग डिफरेंट, समझ आना इज समथिंग डिफरेंट, एंड देन ऑब्वियसली उसको प्रैक्टिस करना इज समथिंग डिफरेंट. ठीक है. एंड फॉर दैट यू नीड टू मेक अ प्लान, विच इज द रूल नंबर 2. इट्स ओके, आप खुद भी प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है. और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जैसे मैंने कहा कि आपको एक प्लान बनाना है, तो प्लान बनाने के बाद छोड़ नहीं देना उसको. जैसे हम डाइट प्लान बनाते हैं और हम उसको छोड़ देते हैं, हम उसको उस पर उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते अपनी लाइफ में, ठीक है. सो व्हेन यू मेक अ प्लान यू हैव टू फॉलो दैट टू. और ऐसा नहीं है जस्ट वीक में एक दफ़ा फॉलो कर लिया दैट्स फाइन, नो. आपने कोशिश करनी है कि हर दिन में एट लीस्ट उसको 30 to 40 मिनट्स उसको प्रैक्टिस करें. मेक अ पार्ट ऑफ योर डे, ठीक है. जिस तरह आप खाना खाते हो और आप भूलते नहीं है कि आपने खाना खाना है, आपको उसके बगैर अपना अपना स्टमक जो है वो एम्प्टी फील होता है, आपको उसके बगैर सुकून नहीं आता ना. यू नीड समथिंग फॉर योर स्टमक. तो इसी तरह से इंग्लिश को भी आप अपने स्टमक के एंटर करने का पार्ट बना लें. आप उसको एक डाइट की तरह लें. आपने उसको सीखना है, आपने उसको अपनी डे का पार्ट बनाना है, अपनी ज़िंदगी का पार्ट बनाना है. उसके लिए पेशेंस चाहिए, मूव योर इंग्लिश टू लर्न इंग्लिश, एंड उसके लिए प्लानिंग चाहिए. और आपको अपने प्लान को फिर फुलफिल करने के लिए उसको आप कह लें कि उस पर अमल भी करना है. ऑब्वियसली इट्स एक्चुअली अ स्लो प्रोसेस, ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा फोकस रिक्वायर्ड होगा, और आपको फिर एक पार्टनर में जो कहूँगी पार्टनर भी रिक्वायर्ड होगा. इट्स नॉट लाइक एवरी टाइम यू नीड अ पार्टनर. आप अपने साथ भी, यानी आप सेल्फ पार्टनर भी बन सकते हैं अपने. तो आप अपने साथ भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इसके बहुत ज़्यादा वेज हैं टू इम्प्रूव इट, ठीक है. और येस, मेक लर्निंग इंग्लिश अ हैबिट. यू हैव टू मेक इट हैबिट. जैसे मैंने अभी कहा दैट आपने अपने डे में से 30 to 40 मिनट्स निकालने हैं टू प्रैक्टिस इट, ठीक है. यू कैन प्रैक्टिस इट विद योर सेल्फ. यू कैन हैव सेवरल एप्स, ठीक है, एक्सेस टू सेवरल एप्स जिसमें आप
कम्युनिकेशन कर सकते हैं कंप्यूटर के साथ। आई वाज एक्चुअली सीइंग अ वीडियो येस्टरडे। आपने देखा होगा कभी भी कहीं पे भी वीडियोस देखते हैं, प्रोबेबली देयर आर आईजीटीवी वीडियोस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम और मे बी द यूट्यूब वीडियोस में बहुत सारी एड्स आती हैं। सो आई सॉ एन एड प्रोबेबली येस्टरडे, डे बिफोर येस्टरडे, उसमें था देयर वाज अ गर्ल हु वाज टॉकिंग टू सीरी ऑन हर फोन। आई थिंक सीरी कोई ऐप है, कोई भी बंदी है फोन पे, व्हाटएवर, वैसे वो फीमेल ही थी and she was actually talking to her. So I found it very interesting and I found it like so helpful that you can have a conversation partner in this way. Like कुछ लोगों को जिनको प्रॉब्लम होती है कि हम किसके साथ कम्युनिकेट करें, ठीक है? तो ये जो किसके साथ कम्युनिकेट करने वाली बात है ना, और यूजुअली फिर आपको ये भी होता है कि पता नहीं हम उसके सामने बोलेंगे, उसको लगेगा हम पता नहीं क्या बोल रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रही है, और हम उसके सामने गलत बोल देंगे तो हमारी जो है सेल्फ रिस्पेक्ट में कमी आ जाएगी, पता नहीं वो हमारे बारे में क्या सोचेगा कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। तो वो सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए यू कैन फर्स्टली गेट अ पार्टनर, जिसको आप कह सकते हो कि कोई इलेक्ट्रॉनिक पार्टनर या कोई भी, यू कैन बी और सिबलिंग एज वेल। आई थिंक सिबलिंग्स जो है वो इस चीज़ को इतना माइंड नहीं करेंगे अगर उनके बहन भाई में कोई कमी है, इंग्लिश नहीं बोलनी आ रही है तो। सो मेक श्योर कि आप अपने डे में से थोड़ा सा टाइम निकालें, और इसको अपनी हैबिट जब आप बना लेंगे ना, तो आप खुद ब खुद इस चीज़ को नोटिस करेंगे दैट व्हेन यू आर हैविंग अ नॉर्मल कन्वर्सेशन विद समवन, मे बी इट्स योर फ्रेंड और मे बी अ फैमिली मेम्बर और समवन लाइक दैट, तो आप उसके साथ खुद से लाइक यूजुअली ऐसा होता है कि जब हम आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, हमारा टोटली जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो इंग्लिश नहीं होगा या टोटली उर्दू नहीं होगा। यू विल बी एडिंग फ्यू वर्ड्स विच विल बी इन इंग्लिश, और मतलब मिक्सचर होता है वो लैंग्वेज का। सो इससे भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना शुरू हो गया दैट यस यू हैव लर्न समथिंग, और मे बी यस यू आर लर्निंग इट, और आपकी जो ये चीज़ें जो आपने सारी प्लानिंग की स्पोकन इंग्लिश के लिए, वो आप उसने आपको कितना ज़्यादा हेल्प किया है। एंड ये स्टूडेंट्स, कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम डेली बेसिस पे ग्रामर की एक्सरसाइजेस कर लें तो क्या हम इंग्लिश आ जाएगी? नहीं, ग्रामर की एक्सरसाइजेस करना इज़ जस्ट टू इम्प्रूव योर ग्रामर। इससे इंग्लिश इंप्रूव नहीं होगी, ये आपकी ग्रामर को इम्प्रूव करेगा, आपके टेंसेस को इम्प्रूव करेगा, दैट्स इट। इंग्लिश स्पोकन आपकी बोलने से, आपकी प्रैक्टिस से इम्प्रूव होगी। एंड बोलना ही सिर्फ इसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके लिए राइटिंग स्किल्स भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप डायरेक्टली बोलने पर नहीं आ रहे तो आपको उसमें रिटन प्रैक्टिस करनी है टू इम्प्रूव इट, ठीक है? ऑलराइट, कुछ इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को थोड़ा सा जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, ठीक है? आपने अपने आप को एक्सप्रेस करना है कि आपको इंग्लिश कितनी अच्छी बोलनी आ रही है, तो यू नीड टू हैव वाइड वेराइटी ऑफ वोकैबुलरी, और आपको प्रोनाउंसिएशन पे वर्कआउट करना है। सबसे ज़्यादा बात ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज स्टूडेंट्स यूजुअली लोग क्या करते हैं, एक्सेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। एक्सेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप कभी देखें ना, तो जो फ्रेंच होते हैं उनका इंग्लिश एक्सेंट थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ब्रिटिश जो बंदा होगा उसका एक्सेंट डिफरेंट होगा, अमेरिकन एक्सेंट डिफरेंट होगा। तो इससे हर एक एक्सेंट डिफरेंस होता है। एक्सेंट डजंट मेक एनी डिफरेंस, एक्सेंट के कोई नंबर नहीं होते हैं, एक्सेंट से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। एक्सेंट नॉर्मल भी चलता है, ठीक है, बट असल चीज़ से जिसका फ़र्क पड़ता है दैट इज़ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो आपकी प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। एंड प्रोनाउंसिएशन में लाइक पहले तो ये कि जो लोग प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं ना, वो यूजुअली बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन, तो प्रोनाउंसिएशन होता है। एंड प्रोनाउंसिएशन कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? जब अपनी वोकैबुलरी पे वर्क करेंगे, अपने लेक्सिकल रिसोर्स पे वर्क करेंगे, तो ऑफ कोर्स आपकी प्रोनाउंसिएशन इससे एनहांस होगी, आपके प्रोनाउंसिएशन स्किल्स जो है वो इम्प्रूव होंगे, ठीक है? आपकी वोकैबुलरी कैसे एक्सपैंड हो सकती है? स्टूडेंट्स देखें, मैं ये नहीं कहती कि आप अपनी डिक्शनरी जो है कोई इंग्लिश डिक्शनरी पकड़ें और उसको आप लर्न कर लें बाय हार्ट। नो, आई विल से कि ऐसे वर्ड्स लर्न करें जिनका यूज़ जो है वो आपके लिए डेली इम्पॉर्टेंट हो, ठीक है? उनका कहीं ना कहीं रोल आता हो। जैसे मेरा ख्याल है कुछ इस तरह के जैसे वर्ड्स हो गए, जैसे इंटरेस्टिंग है। अब इंटरेस्टिंग एक नॉर्मल वर्ड है, आप इंटरेस्टिंग की जगह कोशिश करें फैसिनेटिंग बोलें, ठीक है? आप किसी की तारीफ करें, आप उसको कह रहे हैं यू लुक वेरी ब्यूटीफुल, इंस्टेड ऑफ सेइंग ब्यूटीफुल से अनदर वर्ड, यू लुक गॉर्जियस। इफ द पर्सन इज अ मैन इन फ्रंट ऑफ यू, आप हैंडसम बोल रहे हैं, आप उसकी जगह कह सकते हैं यू लुक यू लुक गुड। वैसे हैंडसम से थोड़ा सा कम हो जाएगा गुड। यू लुक गुड लुकिंग, यू लुक डैशिंग। यस, आई वाज एक्चुअली लुकिंग फॉर अ गुड वर्ड। सो यस, यू लुक डैशिंग। एंड इस तरह के थोड़े से आपने कोशिश करना है कि एडवांस वर्ड्स या थोड़े से अच्छे आप कह सकते हो, जिनको हम गुड वोकैबुलरी वर्ड्स कहते हैं, उनको आपने सीखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, लेकिन मैं आपको बताऊँ, इंग्लिश जो आपने इम्प्रूव करनी है अपनी, तो आपने सबसे पहले कोशिश करनी है
कि ये जो वर्ड्स होते हैं लाइक वेरी वाले जो वर्ड्स होते हैं ना, आपने वेरी वर्ड्स को अवॉइड करना शुरू करना है। जैसे लोग यू लुक वेरी गुड की बजाय आप कह सकते हो यू लुक हैंडसम। इसी तरह से यू लुक वेरी ब्यूटीफुल, यू लुक गॉर्जियस, ये अच्छा है। इट्स वेरी हॉट आउटसाइड, इंस्टेड ऑफ सेइंग वेरी हॉट से इट इज स्वेल्टरिंग आउटसाइड, इट्स बर्निंग आउटसाइड। ठीक है, इस तरह से। सो स्टूडेंट्स, मैंने जैसे कहा कि आपने एक इसको जैसे मैं कह रही हूँ अपने दिन में 30 to 40 मिनट्स इस पे लगाने, सो मेक श्योर उन 30 to 40 मिनट्स में आपने लिस्ट ऑफ वोकैबुलरी भी अपनी डेली बेसिस पे इंक्रीज करती जानी है। आपने कोशिश करनी है, वैसे तो मैं कहती हूँ स्टूडेंट 3 to 10 वर्ड्स किया करें। अगर इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है डे में, ठीक है, आपके पास कोई एक्टिविटी नहीं है, आप कोई स्टडी नहीं कर रहे, आप कोई जॉब नहीं कर रहे, आपका सिर्फ मोटो स्पोकन इंग्लिश लर्न करना है इन दीज डेज, तो आप उस केस में क्या करेंगे दैट 10 वर्ड्स भी आप एक दिन में याद कर सकते हो। और स्टूडेंट्स 10 वर्ड्स याद करना इज़ नॉट अ बिग डील। देखिए आपके दिन में 24 घंटे होते हैं, और याद कैसे करना है, ऐसा नहीं करना है जैसे बैठ के आप रटा लगा रहे हैं इंटरेस्टिंग फैसिनेटिंग, जैसे बच्चे नहीं रटा लगाते, इंटरेस्टिंग फैसिनेटिंग 10-10 बार पढ़ लो याद हो जाएगा, 2-3 दिन बाद फिर भूल भी सकता है। आपने क्या करना है, व्हेन यू लर्न समथिंग, व्हेन यू लर्न अ न्यू वर्ड, आपने उसको ना सेंटेंस बनाने में यूज़ करना है कि अगर फैसिनेटिंग है मैंने इसको यूज़ कैसे करना है, इसका मैं कहाँ-कहाँ यूज़ लेकर आ सकती हूँ या लेकर आ सकता हूँ। सो आपने उसके यूज़ के साथ उसका सेंटेंस बिल्ड करके अपने माइंड में चीज़ें रिकॉल करते रहना है। लेट्स सपोज़ आपने फर्स्ट हाफ ऑफ द मॉर्निंग ऑफ द डे में आपने कुछ 2-3 वर्ड्स याद किए हैं, दोपहर में उनको प्रैक्टिस करके देखें कि उसको मैं कहाँ पे यूज़ में लेके आऊँ उसको। आपने उसको अब यूज़ करना सीखना है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो बिज़ी होते हैं बिकॉज़ दे हैव अ डिफ़िकल्ट लाइफ़स्टाइल। कुछ जो है वो हाउसवाइफ्स हैं, वो घर में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होती हैं। कुछ जो हैं गर्ल्स और वुमेन, वो जो हाउसवाइफ्स के साथ-साथ दे आर डूइंग जॉब्स एंड दे आर यू नो हैविंग अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू इन अ डे। सो 1 वर्ड अ डे इज़ ऑल्सो अ गुड स्टार्ट, यू कैन से। स्टूडेंट्स देखिए, अगर मैं ये नहीं कहती कि 1 वर्ड पे स्टिक रहें, अगर रहते भी हैं स्टिक तो एट द एंड ऑफ द ईयर यू माइट हैव लर्न्ड 365 वर्ड्स एंड 365 डेज अगर आपकी वोकैबुलरी में ऐड होते हैं तो इट्स अ गुड थिंग। ऑब्वियसली आपने कुछ नया सीखा, 10 वर्ड्स है तो कितने ज़्यादा बनते हैं, 36,500 एट द एंड ऑफ द ईयर, तो वो तो बहुत ज़्यादा होता है। और खुद सोचो, आपको जितनी ज़्यादा अच्छी आपकी वोकैबुलरी होगी ना, उतना ज़्यादा यू विल बी फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट। ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी बोलने में फिर। जिससे मैंने कहा कि वर्ड्स याद करना महारत नहीं है, वर्ड्स का याद करके उनका यूज़ करना असल महारत है। सो उसमें उस चीज़ को आपने उसका ख्याल रखना है। दूसरा स्टूडेंट्स, आपने जब वर्ड्स को याद करना है, पहले तो शुरू में उसको हैबिट बनाए दैट यू हैव टू लर्न न्यू वर्ड्स, ठीक है। उसके बाद add phrases or chunks in your learning new words. What do you mean? What I mean by phrases and chunks? अब जैसे स्टूडेंट्स एक वर्ड है, आपने न्यू याद किया वाइन, ठीक है, आपने याद किया बेयर या टी। अब इस ये तो सिंपली आप कह सकते हो कि कुछ बेवरेजेस हैं, तो इन बेवरेजेस में आप वाइन के साथ कर लें, कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाइन हो गया। जैसे इस तरह से बेयर के लिए हम पेंट ऑफ बेयर यूज करते हैं, या कप ऑफ टी, अ पॉट ऑफ कॉफी, इवन अ कप ऑफ कॉफी भी हो सकता है। वो तो पॉट ऑफ कॉफी तो हम उस सेंस में कहेंगे ना, व्हेन देयर आर गेस्ट्स अराउंड, तो योर मदर आस्क्स यू टू ब्रिंग अ पॉट ऑफ कॉफी फॉर देम, तो आप पॉट ऑफ कॉफी लेके आते हैं जी उसमें, इस तरह से। और इस तरह से स्टूडेंट्स, जैसे अब यूजुअली जो लोग हैं वो कहते हैं I am going to eat my lunch, I'm going to eat my breakfast. Instead of saying eat lunch, eat breakfast, develop a habit of saying have lunch, have breakfast, or take lunch or take breakfast. ये advanced words हैं। eat भी चलता है, but have कहेंगे या take कहेंगे वो ज़्यादा better है। प्लीज़ पास मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, प्लीज़ पास मी वाटर से बेहतर है आप कहें अ ग्लास ऑफ वाटर, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, वो ज़्यादा आप कह लें नेटिव जो है स्पीकर की तरह साउंड करेगा। सो इस तरह से इंस्टेड ऑफ लर्निंग द सिंपल वर्ड्स लाइक टी, कॉफ़ी, मेक फ्रेजेस विद देम, ठीक है। और उसके साथ जो सूटेबल हेल्पिंग वर्ब्स हो सकते हैं या वर्ब्स हो सकते हैं, उसको लर्न करना है आपने, ठीक है। उसके बाद येस, एज आई सेड अर्लियर एज वेल, इम्प्रूव द प्रोनाउंसिएशन। आपको बहुत सारे वर्ड्स का स्टूडेंट पता होगा, इवन यू माइट हैव लर्नड अ लॉट ऑफ वर्ड्स बाय नाउ, बट इफ यू फेल टू से देम करेक्टली, देन ऑब्वियसली इट मीन्स यू हैव वेस्टेड द एंटायर टाइम ऑफ योर्स इन लर्निंग न्यू वर्ड्स। जब आपको बोलना ही नहीं आ रहा तो फ़ायदा उनको सीखने का, ठीक है। गूगल पे
वैसे तो स्टूडेंट्स प्रोनाउंसिएशन हर डिक्शनरी में मेंशन होती हैं, उससे बेहतर है आप गूगल पे वो वर्ड लिखें, उस पे नीचे ना लिप्स बने आ रहे होते हैं उस वर्ड के नीचे, आप उसको क्लिक करें तो वो आपको उसकी साउंड बताता है कि वो किस तरह से प्रोनाउंस किया जा सकता है। अच्छा, अब उसमें भी आप स्लो करके भी चेक कर सकते हैं, आप फास्ट करके भी प्रोनाउंसिएशन चेक कर सकते हैं, तो आपको पता लग जाता है। और उन्होंने उस वर्ड को ब्रेक करके डिफरेंट वेज में लिखा होता है ताकि आपको प्रोनाउंसिएशन अगर बोलने से समझ नहीं आ रही तो आप लिखा हुआ समझ सकें। ठीक है, तो गूगल इज़ द बेस्ट यू कैन से सर्च इंजन टू इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, अब जैसे स्टूडेंट्स हम एक वर्ड बोलते हैं मैंडेटरी, कि ये मैंडेटरी है, जिसका मतलब होता है नेसेसरी, कंपल्सरी। ठीक है, मैंडेटरी इज अ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, असल वर्ड है मैंडेटरी, इट्स नॉट मैंडेटरी, इट्स मैंडेटरी। इवन मेरे भी फ्लुएंसी में कभी कभी मैंडेटरी निकल आता है, बट द पॉइंट इज नो वन अंडरस्टैंड। जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर होगा ना वो उसको समझ ही नहीं आएगा कि मैंडेटरी क्या है, तो प्रोनाउंसिएशन पे वर्क करना। इसी तरह से एक वर्ड है जैसे बिकॉज, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो ए और यू की साउंड को ऑ की बजाय आ पढ़ते हैं, लाइक आई एम नॉट कमिंग टू attend the class today because I am ill. So it's because, it's not because. There are a lot of books on the shelf. Some of them might say there are a lot of books on the shelf. It sounds a little pain, right? ये उन लोगों को पेंडू लगेगा जो ऑलरेडी इस प्रोनाउंसिएशन को जानते हैं कि ये प्रोनाउंसिएशन कैसे होने वाली है, तो उनको तो ऑब्वियसली पेंडू लगेगा। लेकिन अपनी तरफ से जो जिस बंदे ने थोड़ी सी एफर्ट की है इसको बोलने में, उसको शायद ये चीज़ उतनी बुरी नहीं लग रही, उसने तो कोशिश की, वो तो खुश हो रहा है कि उसने सीखे है। देखें सोने से एक और बात, व्हेन यू आर लर्निंग समथिंग, वैसे मेरी बहुत बुरी आदत है ये, मैं बाद में बताऊंगी, इवन मेरे बहन भाई मुझे बहुत ज़्यादा टोकते हैं इस बात पे। व्हेन यू आर लर्निंग समथिंग, या अगर आपको कभी किसी की कोई मिस्टेक मिलती है तो प्लीज़ डोंट पिन पॉइंट दैट मिस्टेक पब्लिकली इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। ठीक है, अब उसको बाद में समझा दें, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि बाकी जो लोग हैं, इफ़ देयर आर 10 पीपल सिटिंग ओवर देयर, तो मे बी 5 आउट ऑफ 10 ने शायद वो नोटिस की है, शायद 5 आउट ऑफ 10 ने उसको नोटिस ही नहीं किया, उन्होंने उसको कैजुअली ले लिया। ठीक है, लेकिन अगर आपने बीच में उसको पिन पॉइंट किया कि दैट आपने इसको गलत बोला है, द रियल प्रोनाउंसिएशन ऑफ दैट वर्ड इज दिस, सो इट माइट बी अ बिट एम्बैरसिंग फॉर दैट पर्सन, बाकी लोगों के सामने भी वो बात आ जाएगी। तो अगर आपको कभी किसी कोई मिस्टेक पता लगे तो आप उसको आराम से अलग में बता दें, या ठीक है, हाँ अगर वो खुद कहता है कि यू कैन हाईलाइट द मिस्टेक इफ आई कमिट, तो आप तब बता सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स, जो आप प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करने के लिए कर सकते हैं, एंड इफ़ यू थिंक दैट कि प्रोनाउंसिएशन जो है ना याद करना इज गेटिंग बोरिंग एंड यू वांट टू डू समथिंग चैलेंजिंग एंड इंटरेस्टिंग, सो इन दैट केस यू कैन ट्राई आउट द टंग ट्विस्टर्स। स्टूडेंट्स, टंग ट्विस्टर्स जो है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन इम्प्रूविंग योर प्रोनाउंसिएशन। अब टंग ट्विस्टर्स, आप मेरे ख्याल में एक वेबसाइट है फ्लुएंट यू के नाम से, बहुत अच्छी वेबसाइट है, आप फ्लुएंट यू पे जाके टंग ट्विस्टर सर्च कीजिएगा। ठीक है, आप आराम से गूगल पे लिखेंगे ना फ्लुएंट यू, तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारे इसके स्ट्रैटेजीज और ट्रिक्स वाला भी मिल जाएंगे। अब वहाँ पे टंग ट्विस्टर्स लिखिएगा तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको ऑप्शंस आएंगी, आप उनका प्रैक्टिस करें। एक तो ये कि आपका जो थोड़ा टाइम है और जो आपको इंग्लिश सीखने में मज़ा भी आएगा, और साथ ही साथ इट विल बी अ गेम फॉर यू एज वेल, और आप इसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, एवरीवन विल एंजॉय लाफिंग एट द एंड। It's all about learning things. It's all about how you imitate the things. I mean, imitate means that how you mimic it. जैसे बड़ा कह सकते हो आप, फेमस है एक टंग ट्विस्टर, रेड लॉरी येलो लॉरी, रेड लॉरी येलो लॉरी, रेड लॉरी येलो लॉरी। इससे आपकी प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होती है, एंड यस योर स्पीड इंप्रूव्स एज वेल। टंग ट्विस्टर्स आपकी स्पीड को भी इंप्रूव करते हैं, और आपके वर्ड्स में जो क्लियर चीज़ें होती हैं ना, क्लियर, जैसे यूजुअली ऐसा होता है कि हम बोल रहे होते हैं, हमारा आधा वर्ड ना मुंह में ही रह जाता है, बट टंग ट्विस्टर्स जो हैं ये आपकी क्लियर प्रोनाउंसिएशन में भी हेल्प आउट करते हैं। लग ऐसा रहा होता है कि ये आपकी इंग्लिश बिगाड़ेंगे, आपके क्लियर नहीं करेंगे आपकी ज़बान को, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग टंग ट्विस्टर्स आपकी ज़बान को भी क्लियर करते हैं, आपकी प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करते हैं, और साथ ही साथ आपकी स्पीड ऑफ स्पीकिंग भी इन्हांस होती है इस तरह से। ठीक है,
बाकी कुछ लोग का कहना है कि हमें आप बुक्स रिकमेंड करें, हम इंग्लिश कहाँ से सीखें। स्टूडेंट्स, इंस्टेड ऑफ रीडिंग द बुक्स, आई मस्ट से आप कुछ भी गूगल पे लिख के सर्च करेंगे ना, जैसे आप सिर्फ और सिर्फ अगर आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है, आप लिखेंगे ना हाउ टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, आप वो खोल के भी पढ़ लेंगे ना, तो वो भी आपको आपकी इंग्लिश तो इम्प्रूव करेगा ही, क्योंकि आप कुछ देख के पढ़ रहे हैं और साथ साथ आप कुछ सीखेंगे भी वहाँ से। सो बुक्स से यू कैन लर्न वोकैबुलरी। इंस्टेड ऑफ बुक्स आई रिकमेंड स्टूडेंट्स आप मूवीज देख लिया करें, ज़्यादा बेटर है। सीजन्स देख लें, वो बहुत ज़्यादा बेटर है। सबटाइटल्स के साथ देखें तो और बेटर है। जब आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, आपको स्पीड, आप क्या कह लें कि नॉर्मल हो जाएगी, आप उस स्पीड को कैच कर पाएंगे, मूवीज़ की स्पीड को, देन इट मीन्स यू आर अ फ्लुएंट स्पीकर एंड नाउ यू आर फ्लुएंट लिसनर एज वेल। आप को फ्लुएंट इंग्लिश की भी समझ आना शुरू हो गई है, ठीक है। एंड येस, फॉर दैट यू नीड टू लर्न द नेचुरल फ्लो ऑफ इंग्लिश। वो कैसे आप फ्लो सीखोगे? बाय लिंकिंग द वर्ड्स टुगेदर, जॉइनिंग द टू साउंड्स टुगेदर, ठीक है, एंड लर्निंग के आपको साउंड्स को कैसे डिसअपियर करना है। जैसे देयर आर लॉट ऑफ वर्ड्स स्टूडेंट्स, जैसे हम उसमें नहीं बोलते हैं, किसी में कुछ साइलेंट होता है, ठीक है। अभी मेरे माइंड में आया था, जैसे स्टूडेंट्स राइट है, WRIGHT वाला राइट, उसमें हम W नहीं बोलते। इस तरह से बहुत सारे ऐसे वर्ड्स जो जिसमें कुछ चीज़ें जो है वो साइलेंट होती हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने कुछ कॉन्ट्रैक्शंस भी लिखे हैं, आपको नजर आ रहे होंगे, आई और एम, आई एम, ठीक है। इन आई के बाद पॉज लेके एम कहना से बेहतर है आप इसको इकट्ठा बोलें कॉन्ट्रैक्ट करके, आई एम। इसी तरह से ही, पॉज लेके विल ना बोलें, ही विल और हील, आप डब्ल्यू इसमें स्किप कर सकते हैं। दे हैव इज फाइन और दे हैव इज ऑल्सो फाइन। हैव वाला ह वाली साउंड को आप स्किप कर सकते हैं, दे हैव भी कह सकते हैं। डू नॉट और डोंट, यह तो आपको ऑलरेडी पता है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, आप कभी सोचा है आपने कि जैसे माउस है एक वर्ड, इसका प्लूरल माइस होता है, बट हाउस का प्लूरल हाउसेस ही होता है। देयर आर ऑल्सो एक्सेप्शंस। तो इस तरह की चीज़ें, आपकी इंग्लिश उस दिन इम्प्रूव हो जाएगी जिस दिन आप लोगों ने उसके बारे में थिंक करना सोच लिया। जैसे when you feel like your day is going okay, और आपको पता है कि आपने अपनी इंग्लिश में इम्प्रूव करनी है, दिल नहीं कर रहा कुछ करने का कि उसके से रिलेटेड कुछ टास्क करें, उससे रिलेटेड कुछ करें, सो जस्ट मेक श्योर दैट यू टेक योर टाइम फ्रॉम योर डे टू थिंक। और आपने जो भी चीज़ सोचनी है अपने माइंड में, उसको इंग्लिश में ही थिंक करना है। वो तो सिर्फ आप तक ही रह रही है ना बात, किसी को क्या पता आप लेट के क्या सोच रहे हैं, बैठ के क्या सोच रहे हैं। नो वन इज इन योर थॉट्स ना, कोई घुस के तो नहीं देखने वाला कि आप क्या कर रहे हो। सो इफ यू आर सिटिंग आइडल और आप कुछ भी नहीं कर रहे, मोबाइल यूज नहीं कर रहे, कोई गेम नहीं खेल रहे, कुछ भी किसी से बात नहीं कर रहे, कुछ तो सोच रहे होंगे, ठीक है। प्रोबेबली गर्ल्स सोच रही होती हैं कल क्या पहनूं, ठीक है, कल मैंने क्या पहन के जाना है। वो भी आप अपने माइंड में इंग्लिश में सोच सकते हैं। शुड आई वेयर ग्रीन ड्रेस or should I go for the purple one? I think I was looking good in the black one. I should go with for the black. देखिए मैं ये माइंड में सोच रही हूँ अगर, so I'll think and recall it in English. आप भी ऐसे ही क्या करें? Then think of your shoes and think of your makeup, then think of your lipstick which you're going to wear. And yes, the boys might be thinking कि हम क्या सोचें? Boys might think कि कल मैंने किन ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना है लंच करने के लिए, डिनर करने के लिए। और द बॉयज माइट थिंक कि उन्हें कौन सी गेम कल खेलनी है, या आज उन्होंने सारा दिन में क्या किया। स्टूडेंट्स, अगर कुछ भी सोचने के लिए नहीं है ना, तो एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू आर लेइंग ऑन योर बेड, यू कैन जस्ट थिंक व्हाट डिड यू डू इन द एंटायर डे, व्हाट गुड थिंग्स वर देयर इन योर डे, व्हाट बैड थिंग्स यू डिड। माँ पापा से किसी ने बदतमीजी तो नहीं की, तो उसके बारे में सोचें कि मैंने क्या बदतमीजी की, आइंदा नहीं करनी है। मामा ने किसी बात को माइंड तो नहीं कर लिया कि मुझे नहीं करना चाहिए था। बाद में पछताने से बेहतर है रात को ही सोच देखें कि आपने सारा दिन में क्या किया। इफ़ यू हैड अ बैड डे, focus about that, कि what was bad in it. If you had a fight with someone, उसके बारे में सोचें। बट अगेन सोचना है तो वो भी इंग्लिश में ही सोचना है, ठीक है। अच्छा, हम बात बहुत आगे की निकल गए हैं। वी वर एक्चुअली लेफ्ट विद द स्ट्रेस एंड रिदम ओवर हियर। अच्छा स्टूडेंट्स, बहुत सारे इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन पर आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देकर बोलना होता है। जैसे whenever we are given a question like जिसमें आपको फौरन से रिस्पॉन्ड करना है। Yes, let's suppose, do you take tea in the evening? If it comes to me, I'll say yes, of course. अब देखो मैंने yes, of course किस तरह से बोला, it's stressed on it, and ये मेरे आंसर का आप कह लें कि जान था इस पूरे आंसर में। अभी मेरा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ। Yes, of course, I love to have tea in the evening because it keeps me
stress free, and it actually refreshes me. And कल बल्कि when I was having a class, मुझे सर भी यही कह रहे थे कि ऐसे मिस स्विंग को चाय दे के आए ताकि वो और चौकस हो जाए. So yes, it keeps me chaucus. In other words, it keeps me refreshed. And yes, then comes the rhythm. All right, when you're speaking something or when you're talking to something, there is a rhythm in your activity. There is a rhythm in what you're saying and what you're are connecting to, and what sort of conversation you're having with that person. सो रिदम में स्ट्रेस भी आ जाता है, रिदम में कंट्रैक्शंस भी आ जाती है, रिदम में लिंकिंग भी आ जाती है. लाइक दीज थिंग्स विच आर अ पार्ट ऑफ रिदम, इसमें आपको सोचना आना पड़े, अच्छा कि मैंने लिंकिंग वर्ड यूज़ किए, मैंने कंट्रैक्शंस इसमें यूज़ की, क्या मैंने स्ट्रेस किया. मतलब खुद ब खुद एक चीज़ होती चली जा रही है, आप बोल रहे हैं और उसमें ये सारी चीज़ें आ रही हैं, तो इट मीन्स यू आर इन अ गुड रिदम, यू आर परफॉर्मिंग इट ऑल वेल. ठीक है, शुरू में अप्स एंड डाउन्स आएंगी. आप पहले तो कोशिश करें कि बोलना सीखें, बोलने में आए, फ्लो में आए. व्हेन यू आर इन अ फ्लो, देन वर्क ऑन दीज स्मॉल थिंग्स, हाउ टू लिंक द वर्ड्स, हाउ टू स्ट्रेस द वर्ड्स, हाउ टू एक होता है इंटोनेशंस. जैसे स्टूडेंट्स हम एक दूसरे के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, एक आपकी टोन नहीं रहनी चाहिए थ्रू आउट. जैसे अगर मैं कहूँ आई एम गोइंग टू लाहौर इन द मॉर्निंग, आई विल कम बैक इन द आफ्टरनून एंड देन आई विल गो टू जॉब. एक ही तरह मैंने बोलती चली गई, ना पता लगा आंसर दिया, ना पता लगा गुस्सा आ रहा, ना पता लगा, ये इमोशनलेस आंसर था, कुछ भी नहीं. आपके फेस पे एक्साइटमेंट होनी चाहिए, आपके आंसर में एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि आप कल कहीं जा रहे हैं, आपने इतने बजे वापस आना है. वापस आना है तो ऑब्वियसली एक दिन में ट्रैवलिंग करना है, फिर वापस भी आना है. थोड़ा सा अपने टेंशन सी दिखाएं, थकावट सी दिखाएंगे, यू आर नॉट हैप्पी विद इट. आपके फेस से, आपके आंसर से वो चीज़ पता लगनी चाहिए. ठीक है, स्टूडेंट्स अपना माइक म्यूट कर दें. देयर इज अ पर्सन जिसका माइक ऑन है. गॉड, माइक म्यूट कर दें प्लीज. अच्छा, सो स्टूडेंट्स इसको हम म्यूजिकल फीचर भी कहते हैं, यानी आपके आंसर में एक म्यूजिकल रिदम होना चाहिए. दैट म्यूजिकल रिदम इज एक्चुअली द इंटोनेशन. ठीक है, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है. देन कम स्पीच शैडोइंग. यस, इसकी मैं ऑलरेडी वैसे बात कर चुकी हूँ, दैट आप इमिटेशन के थ्रू हेल्प सीख सकते हैं. इमिटेशन क्या था कि हाउ टू कॉपी द थिंग्स. दैट इफ यू आर वॉचिंग अ मूवी, इफ यू आर लिस्निंग म्यूजिक, इफ यू आर वॉचिंग डॉक्यूमेंट्रीज, ट्राई टू कॉपी हाउ दे से इट. ठीक है, and try to follow their pronunciation, try to follow their way of speaking, try to follow कि वो किस तरह से बात कर रहे हैं. So आप उसको जितना ज़्यादा फॉलो करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा. एक बार सुन के ना उसको प्रैक्टिस कर लिया करें फ़ौरन, फिर 2-3 दफ़ा उसको प्रैक्टिस करें. ठीक है, मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि अगर आप कुछ भी नहीं करते ना मूवीज़ देखते हैं, ना सीजन देखते हैं, तो आप डेली ना एक टेड टॉक्स वीडियो देख लिया करें. यूट्यूब पे लिखेंगे ना टेड टॉक्स, यू कैन फाइंड अ लॉट ऑफ वीडियोस. इट्स हार्डली अ वीडियो 14 to 15 मिनट्स, और उस पर सब टाइटल्स भी होते हैं. it will increase your vocabulary, it will increase your reading skills, listening skills. reading कैसे improve होगी, आप subtitles पढ़ रहे हैं. ठीक है, आप उससे new words सीखेंगे, of course it will help you in the speaking as well. And yes, I also said in the beginning that if you don't have any partner to whom you can talk, make a habit कि आप अपने आप से ही self talking कर लें. ठीक है, मैंने बताया कि बहुत सारी ऐप्स हैं जिनके साथ भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं. अब लेट्स सपोज स्टूडेंट्स आप खुद से सोच रहे हैं, मुझे भूख लग रही है, मैं खाना ही खा लेती हूँ, आई एम फीलिंग हंग्री, लेट्स गो एंड हैव समथिंग. ठीक है, खुद से सोचा, उसको ट्रांसलेट कर लिया फटाफट से. ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैंने दी है, शैल वी गो गेट अ ग्लास ऑफ वाटर, ये शैल आई गो गेट अ ग्लास ऑफ वाटर. अपने आप से मैं पूछ रही हूँ कि चलूँ मैं ग्लास ऑफ वाटर ले आऊँ. ठीक है, या फिर आज काम करना है, मैं सुबह उठी हूँ, एंड देन आई थिंक ऑफ द chores that what I have to do in the entire day. All right. Firstly, I wake up in the morning, and when I open my eyes, the very first thought which comes is what to wear today. हर लड़की की होती है ना ये, मेरे ख्याल में बात. So then I recall about the can say the racks of my cupboard. अब मैं देखती हूँ, अच्छा फर्स्ट में ये था, ये वाला पहन लूँ, फिर मैं कहूँगी नहीं अभी पिछले दिनों तो पहना था, नहीं आज नहीं पहना. सो instead of thinking it like that कि पिछले दिनों तो पहना था आज नहीं पहना, I'll say it in English if I'm improving it. ठीक
ठीक है? तो आपने भी इस तरह से इसको इम्प्रूव करना है, तो कोशिश करें व्हेन यू आर थिंकिंग समथिंग और व्हेन यू आर मेकिंग अ प्लान इन योर हेड, मेक इट ऑल इन इंग्लिश, क्योंकि उसमें तो कोई भी नहीं ना सुन रहा, नहीं देख रहा कि आप उसको कितनी स्पीड में कर रहे हैं कुछ या किस तरह से कर रहे हैं, ठीक है? जैसे आई नीड टू डू अ लॉट ऑफ लॉन्ड्री टुडे, बट बर्तन धोने को नहीं, सॉरी, कपड़े धोने को कहते हैं ना लॉन्ड्री करना। और सिक्स्थ पॉइंट इज अगेन थिंक इन इंग्लिश, यू हैव टू मेक अ स्टोरी ऑफ योर डे, you try to retell a story of your day in English. Find a friend to talk if in case you don't have any friend or you think that you feel shy in front of others in the beginning, of course, then you can talk to Siri. I told a bit earlier कि एक ऐप है, आई गेस वो आपको मिल जाएगी या देख लें यू प्ले स्टोर पे कि क्या कैसे आप उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं, या पहले कंप्यूटर्स पे भी होता था, यू कैन टॉक टू द कंप्यूटर्स, सो लेट्स यू कैन फाइंड इट आउट। मेरे ख्याल में गूगल असिस्टेंट भी होता है शायद, तो मेरे ख्याल में आप गूगल से भी बातें कर सकते हैं। उसमें होता है ना दैट यू कैन कमांड गूगल इन वर्ड्स एंड देन वो आपको कुछ भी सर्च करके देता है। आई थिंक ये भी होता है फ़ोन में, आई नेवर ट्राइड इट। और यस स्टूडेंट्स, इंग्लिश जब भी आप सीख रहे हैं, आपने एक और काम भी करना है, दैट इज़ मेक योर डायरी, डेली डायरी। और आपने उस डायरी पे रोज़ कुछ ना कुछ लास्ट में लिखना है, और वो डायरी डायरी क्या होगी, यू विल टॉक अबाउट योर डेली टास्क्स इन इट, ठीक है? डायरी के साथ दोस्ती करें, डियर डायरी, I had a bad day today. I had a small fight with one of my close friends. I'm trying to patch up with her in the morning, but I'm quite afraid how will I talk to her in that way. तो इस तरह से make yourself comfortable with talking to your own diary, and I hope it will work. And ये वैसे I have come to the conclusion after this कि it will probably make you a bit introvert if you know cut off from your friends and start talking to your diary. Probably it will do it like that, but इसको आपने for the time being करना है. Once you feel that आप थोड़ा सा confident होते चले जा रहे हैं in terms of English, तो आप इसको बेशक ख़त्म कर सकते हैं, और वही चीज़ जो आप डायरी के साथ कर रहे थे अपने फ्रेंड के साथ डिस्कशन कर लें तो ज़्यादा बेटर होगा। So yes, these were the points which you need to think and learn, of course, about your English learning. And बाकी जो है साथ साथ चीज़ें चलती रहेंगी, और बाकी हम स्पीकिंग की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं स्टूडेंट्स में साथ स्पोकन के लिए साथ में हम क्लास में कुछ एक्टिविटीज़ करते रहा करेंगे। How many students are there now? हमारे पास हैं 2 ही स्टूडेंट्स हैं, खदीजा और रीना। ऑलराइट, अभी हम खदीजा और रीना ने मुझे बताया था प्रोबेबली शी इज़ लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़ इन यूके फॉर पीएचडी। रीना, वो आप ही थी ना कल जब हमने डिस्कस किया था? Yeah, ma'am. ओके, एंड व्हाट अबाउट खदीजा? खदीजा कल आप थीं? एनीवेज, अच्छा रीना, मुझे अब ये बताएं, क्या आपने आइल्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है? खुद से किया है अभी तक कुछ, या बिल्कुल भी कुछ नहीं किया अभी तक? मैंने तो अभी तक कुछ नहीं किया, बस मेरे हस्बैंड इंग्लिश बोलते हैं, उनके साथ थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हो जाती है मेरी। ठीक है, उसके अलावा अभी तक कुछ भी नहीं किया? लाइक आपके लिए बिल्कुल पहली चीज़ होने वाली है, या आप कह लो कि यू आर टोटली ब्लैंक रिलेटेड टू आइल्स कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिपरेशंस। आपने जो भी Yeah. सीखना है इधर से ही सीखना है, क्लासेस से ही, राइट? हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है, ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले लिस्निंग मॉड्यूल से ही स्टार्ट करेंगे। लिस्निंग के जो टास्क्स हैं उससे स्टार्ट करते हैं।
Okay. Okay, students, so the very first test in the IELTS exam will be the listening test, listening module. ठीक है, there are 4 modules in IELTS और सबसे पहला टेस्ट जो होने वाला होगा वहाँ पर, that will be the listening one. And as the name is indicated, you're going to listen something. और आप जो भी ऑडियो से सुन रहे हैं वो साथ साथ आप यहाँ पर मार्क भी करते चले जाएंगे और यानी साथ साथ आप यहाँ पर करते चले जाओगे, लिखते चले जाओगे. सो लिसनिंग टेस्ट जो है अगर हम इसको डिटेल में डिस्कस करें तो पहले तो मैं आपको बताऊंगी लिसनिंग टेस्ट में क्या क्या चीज़ें होंगी. सो लिसनिंग टेस्ट इज एक्चुअली अ 4 सेक्शंस टेस्ट. ठीक है, 4 sections which are divided in this way that every section carries 10 questions. ठीक है, and these 10 questions carry 1 mark each. ठीक है, तो टोटल आपके कितने मार्क्स हो गए 40 मार्क्स बिकॉज 4 sections 10 questions in each section. It means 10 into 4 40 questions, and since every question carries 1 mark, so there are total 40 marks. और आपको 40 में से स्कोर्स के अकॉर्डिंगली आपको बैंड्स दिए जाएंगे. ठीक है, द वेरी फर्स्ट सेक्शन इन द लिसनिंग मॉड्यूल विल बी अ डायलॉग, which means there are 2 individuals speaking in it. ठीक है, और हैविंग अ कॉन्वर्सेशन. अब उनकी कॉन्वर्सेशन सुन के अटेम्प्ट करने वाले हैं अपना क्वेश्चन पेपर. Section number 2 is going to be a monologue. Mono means one. It means there will be only a single person speaking in this. ठीक है, whereas the third section will be you can call it a surprise. It can be a conversation between 2 individuals or it can be a group discussion as well. There might be 3 to 4 persons speaking, or there might be more than 4 persons in a group having a discussion related to academics or related to any kind of gathering, or maybe they're talking about some of the meeting points in the office. And then comes section number 4, which is actually a bit tougher from the other 3 sections because it's the last section of the listening test. And the level of difficulty also progresses once you proceed towards the end of the test. And section number 4 is again a monologue, but that monologue is totally related to academics. So this is a reason probably students find it a bit difficult. हर चीज़ जो हमारी पढ़ाई से रिलेटेड होती है ना वो बच्चों को मुश्किल ही लगती है वैसे. एनीवे स्टूडेंट्स, हम कल भी वैसे ये बारे में बात कर चुके हैं. द लिसनिंग टेस्ट इज गोइंग टू बी, यू कैन से, एन ऑब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट. इसमें कोई शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं है, इसमें कोई लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं है, इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव है. ऑब्जेक्टिव में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मैचिंग्स, summary completion, and multiple choice questions की further types हैं. तो वो हम one by one इनको discuss कर लेंगे. Today we will be going through fill in the blanks, that how you are going to attempt the fill in the blanks, what problems might come in your test, what you can say, what else? Yes, that how you're going to attempt these. आपको किस तरह से नंबर ऑफ वर्ड्स की लिमिट का आइडिया होगा कि आपने कितने नंबर ऑफ वर्ड्स के लिमिट में उसको अटेम्प्ट करना है, आंसर्स को किस कब और कैसे वहाँ पर लिखना है एंड ऑल. और ये स्टूडेंट्स, सिंस आई सेड हर सेक्शन में 10 क्वेश्चंस हैं. सो ओवर हियर ऑन द स्क्रीन्स यू कैन सी दैट इट सेज सेक्शन नंबर 1 क्वेश्चंस 1 to 10, कंप्लीट द फॉर्म बिलो, एंड द वर्ड लिमिट इज write one word and or a number for each answer. क्या आप एक वर्ड लिख सकते हैं, साथ उसका नंबर लिख सकते हैं, यानी वर्ड के साथ नंबर भी आ सकता है, या खाली वन वर्ड भी आ सकता है, या खाली नंबर भी आ सकता है आपके आंसर में, या ये दोनों इकट्ठे भी लिखे जा सकते हैं. ठीक है, और आपका जो टॉपिक है दैट इज अकोमोडेशन फॉर्म स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, दैट देयर इज अ पर्सन, देयर इज अ स्टूडेंट हु इज एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू लिव इन अ हॉल or to live in a hostel, and she is looking for maybe for school, या आप कह सकते हो she's an employer or whatever, वो तो खैर हमें ऑडियो से पता लग जाएगा. सो एक बंदी को हॉस्टल चाहिए एंड शी इज फिलिंग द फॉर्म, और वो फॉर्म है अकोमोडेशन फॉर्म जिस पे उसको स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है. एंड हियर यू कैन सी दैट देयर इज एग्जांपल व्हिच इज ऑलरेडी डन
for you, and that is type of accommodation, और यहाँ पे उसने mention किया हुआ है hall of residence. आप इसको भी ऑडियो में से सुनोगे, आपको पता लगेगा कि ऑडियो में से उसने किस तरह से यहाँ पर हॉल लिख दिया. सारी बात है, वो रेजिडेंस का कौन से पार्ट था जो उसको चाहिए था, तो उसने बता दिया उसको हॉल ऑफ रेजिडेंस चाहिए. Then comes the other questions. It says name, and that is अनु यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, आगे है 1. इसका मतलब है अनु को कंप्लीट करना है आपने. तो अनु उसका फर्स्ट नेम यहाँ पे मेंशन है, सर नेम आपने उसका यहाँ पे लिखना है. अब स्टूडेंट्स ऑडियो में इस तरह नहीं होगा कि बिल्कुल इस तरह से आपस में बात करेंगे ताकि हमारा क्वेश्चन पेपर भी फिल होता चला जाए. नहीं, ऑडियो में नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हो रही है, आपको उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन इस तरह से लिखे हुए आगे हैं. अब आपने इसको इस तरह अटेम्प्ट करना है. जैसे ऑडियो में बात हो रही है, हाय हाउ आर यू, आई एम गुड, एंड व्हाट अबाउट यू, आई एम आल्सो गुड. वेल, आई एम लुकिंग फॉर एन अकोमोडेशन here because my university is quite near this place, and I can go there by foot. So I think this is the best place for me to live. All right, what's your name? My name is Anu. मैं डैश बोल रही हूँ because आप ऑडियो में सुन के जो करने वाले हैं. So whatever she'll say, अब मुझे नहीं पता ये ही है कि शी है, मैं शी कह लेती हूँ चलें. whatever she'll say कि अनु जो भी वो बंदी होगी, पूरा नाम उसका जो भी होगा उसका आगे आ जाएगा. लाइक अनु मलिक है, अगर मलिक आ जाएगा, या जो भी उसका होगा सरनेम आप यहाँ पे उसके आगे लिख देंगे. यूजुअली जो अंग्रेज होते हैं ना, उनके नामों के स्पेलिंग्स बड़े अजीब होते हैं, ठीक है, तो वो उसको प्रोनाउंस करके भी बता देते हैं. लेट्स सपोज इफ द वर्ड इज Joseph, Anu Joseph, let's suppose. अब देखिए students, everyone will write the spellings of Joseph what they think in their head. कुछ लोग JOZIPH लिख सकते हैं, कुछ लोग JOSEPH लिख सकते हैं. हर एक के अपने spellings हो सकते हैं. So to avoid all these kind of misconceptions and you can say the wrong spellings, they usually say it like this: JOSEPH. ठीक है, तो वो आपको ऑलरेडी स्पेल करके बता देते हैं, तो इट्स क्वाइट इजी. देन आप फटाफट से वहाँ पे लिख लेते हैं जो ऑडियो में से सुन के. देन द नेक्स्ट इज ऑफ कोर्स, जब आप कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन फॉर्म फिल करते हैं या कभी भी कोई भी फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, तो आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछी जाती है, या आपके डिफरेंट जो भी क्रेडेंशियल्स होते हैं वो पूछी जाती है, आपका CNIC नंबर पूछा जाता है. सो यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ होगी वो मेंशन करनी है. और नहीं रीना, व्हाट्स योर डेट ऑफ बर्थ? Mine is 22 August 1996. Alright, मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ. Reena said 22 August 1996. Okay, Reena, if you noticed the word limit over here, it said write one word and or a number for each answer. But according to the limit of words which is given in the question, we exceeded it. And we have written two numbers over here, which is 22 and 1996. But the words over here जो हमने लिखे हैं वो है August. तो अगर आप यहाँ पे नोट करें तो हमने लिखा है 22 August 1996, राइट? जो कि है गलत, जो कि गलत है. वो गलत क्यों है, हमने उसको देखना है. क्योंकि स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास वन वर्ड और वन नंबर की लिमिट थी, और वन वर्ड हमारे पास अगस्त हो गया और नंबर जो है 22 आ गया. तो ये भी ठीक है, नंबर भी आ गया और वर्ड भी आ गया, तो हमारी वर्ड लिमिट यहाँ पे कंप्लीट हो गई है. दिस इज द राइट आंसर. बट यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स इस तरह भी कर सकते हैं, अगस्त को AUG लिख देंगे. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. In the IELTS exam, you're not supposed to write down the abbreviations or half words. You have to write the full spellings of the word. It will be considered wrong if you just go with AUG instead of writing it in the full form. AUG UST 22 August. ठीक है, अगर हमारे पास होता कि आप 2 numbers लिख सकते हैं तो हम 1996 लिख सकते थे, बट अब नहीं लिख सकते. अच्छा, आपके माइंड में ये भी बात आई होगी कि हम 1996 लिखा रहने देते, 22 मिटा देते. ऐसा भी तो हो सकता था ना, करके देख लेते हैं. 1996, ठीक है, हम 22 इरेज कर देते हैं. ये डेट ऑफ बर्थ तो ना हुई, ये तो मंथ और ईयर हो गया. डेट ऑफ बर्थ जब भी पूछी जाती है तो डेट और मंथ लाजमी लिखते हैं, ईयर स्किप किया जा सकता है. स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा व्हेन यू आर फिलिंग एनी काइंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट में ना यूजुअली बात मेंशन होती है
डेट, मंथ और ईयर लिखा होता है ना, तो हम उसी के बॉक्स में फिर वो डेट, मंथ और ईयर लिख देते हैं। बट जब हमसे वर्बली कोई पूछता है ना व्हाट्स योर डेट ऑफ बर्थ, हम उसको ईयर नहीं बताते। पता नहीं आप लोग बताते हैं या नहीं, मैं तो नहीं बताती, या फिर आप अब आपके माइंड में ये आएगा लड़कियां तो वैसे ही नहीं बताती। खैर ये लड़कियों वाली बात नहीं है, मैं वैसे ही जनरल बात कर रही हूँ कि यूजुअली नहीं बताते लोग। if someone asks about my date of birth, I'll only say it's 3rd June instead of saying 3rd June dash dash. ठीक है, so I'll not speak about my year, I'll just say the date of my birth and the month, that's it. All right, then you can see that after date of birth, it says country of origin, which is India, which is already mentioned. So you need not to bother about it. You just move ahead quickly and find out what might be the next question. It says course of study, and that is again a blank. ठीक है, अब आपको कोर्स ऑफ स्टडी के बारे में जानना है कि कोर्स ऑफ स्टडी क्या है, तो इसके लिए आप ऑडियो सुनेंगे ऑब्वियसली, एंड मेक श्योर दैट वट एवर योर आंसर इज इट्स अ सिंगल वर्ड आंसर। अब मैं यहाँ पे जैसे आपको एक एग्जाम्पल दूँ, लेट्स सपोज ऑडियो में कहा जाता है द कोर्स ऑफ स्टडी इज आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज। Right. So what do you guys think? What should be the answer? Do you think it's right? According to the word limit, does it satisfy the limit? Or does it exceed it? Of course, it's exceeding the limit. There are 3 words over here. Arts 1, 2 and 3. तो ये 3 words हो गए ना ये, और 3 words की तो लिमिट ही नहीं थी हमारे पास, वर्ड लिमिट सिर्फ 1 वर्ड की है, तो हमने 1 वर्ड में इसको लिखना है। सो यूजुअली स्टूडेंट्स, अगर कोई आर्ट्स का स्टूडेंट होता है तो जब वो बताता है किसी को कि मैं कौन सा स्टूडेंट हूँ, तो वो यही कहता है कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ आर्ट्स, rather than saying in a full manner, or you can call it a full word, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, से बेहतर है आप सिर्फ आर्ट्स कर लें। चलिए मैं इसको और सिंपल बनाती हूँ। लेट्स सपोज द कोर्स ऑफ स्टडी द पर्सन इज एनरोल्ड ओवर हियर इज मोलेक्युलर बायोलॉजी, राइट। अब यहाँ पर फिर मोलेक्युलर बायोलॉजी जो है वो 2 words हो गए हैं, which is not our you can say which is not in our word limits जो हमें given है। So in this case हम इसको इस तरह से कट शॉर्ट करेंगे कि हमारा क्वेश्चन का आंसर है उसकी सेंस कंप्लीट हो जाए। लाइक अगर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर बायोलॉजी को मिटा दूँ, द वी आर लेफ्ट ओनली विद मोलेक्युलर। अब ये मोलेक्युलर इट्स एक्चुअली नॉट शोइंग अ कोर्स ऑफ स्टडी। यहाँ पे ये चीज़ नहीं हमें समझ आ रही ना कि ये कोर्स ऑफ स्टडी है या नहीं है, या क्या प्रॉब्लम है इसके साथ। अब मोलेक्युलर लेवल भी हो सकता है, मोलेक्युलर पार्टिकल हो सकता है, मोलेक्युलर टाइप हो सकता है, बट इट्स नॉट अ कोर्स। सो इन दिस केस हम लोग मोलेक्युलर मिटाते हैं और बायोलॉजी लिख देते हैं, बिकॉज बायोलॉजी का बायोलॉजी तो है ही ना, एक मेन सब्जेक्ट है। अब बायोलॉजी की फर्दर टाइप है मोलेक्युलर बायोलॉजी, तो कोर्स ऑफ स्टडी उसके अंदर ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। बट यस, इफ वी आर गिवन 2 words लिमिट, तो हमें तब इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है कि इसमें क्या लिखें और क्या छोड़ें। तो उस केस में आप मोलेक्युलर बायोलॉजी पूरा लिख सकते हैं। बट यहाँ पर क्योंकि हमारे पास सिंगल वर्ड लिमिट है, तो उस लिमिट को फुलफिल करने के लिए विल ओनली गो विद द मेन सब्जेक्ट विच इज बायोलॉजी। ऑलराइट, व्हाट इफ the subject title is or the course of study is computational physics, then in that case what will we be writing? computational physics अगर होता है तो In this case, I think we should write only physics. okay, yes of course we'll write only physics, क्योंकि फिजिक्स की ही फर्दर वो ब्रांच है जो है कंप्यूटेशनल फिजिक्स। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट कंप्यूटर और कंप्यूटेशनल, वो थोड़ा सा इनकम्प्लीट साउंड करेगा। हाँ, कंप्यूटर फिर भी पूरा है, लेकिन कंप्यूटर के साथ फिजिक्स का भी कहीं ना कहीं कनेक्शन है, इसलिए विल गो विद द फिजिक्स इंस्टेड ऑफ गोइंग विद कंप्यूटर। ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। सॉरी, it says number of years planned in hall. Okay, so let's suppose the audio says, well, the course which I am enrolled in will last for 3 years,
But since last year is going to be my research area or research year, in that year I'll be traveling mostly. So I'll be staying here for 2 years. What will be the answer? The answer will be 2 years, because I said course just जो title है course का या जो course की जो duration है that is 3 years, but since last year is going to be the research year and I'll be traveling for that, so I'll stay here only for 2 years. उसके accordingly हमारा answer हो जाएगा 2 years. अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सॉरी, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 years, तो क्या आप ये मेरा आंसर ठीक है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों ठीक नहीं है? हालांकि इसने वर्ड लिमिट भी कंप्लीट की है, पूरी की है, वर्ड लिमिट के अंदर अंदर है। हमारे पास 1 वर्ड और नंबर की लिमिट थी, 1 वर्ड भी आ गया, 1 नंबर भी आ गया। बट सवाल ये है, नंबर ऑफ ईयर्स प्लान्ड इन हॉल, हमसे सिर्फ नंबर पूछा गया है और वो ऑब्वियस है कि नंबर किस चीज का है? ईयर्स का। सो इसलिए विल नॉट राइट 2 years, विल ओनली राइट 2। नंबर पूछा गया ना, इसी तरह से इफ वी हैव अ क्वेश्चन, आपको बताती हूँ, हाउ मच दिस बैग कॉस्ट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 5 है ये। How much this bag costs? वो हमसे बैग की कॉस्ट पूछ रहा है। Let's suppose the answer is $10 and we write it in this way, $10. तो आंसर मेरा अभी भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ब्लैंक के बाद ऑलरेडी डॉलर्स का सिंबल था। सो वी आर नॉट गोइंग टू रिपीट द थिंग्स विच आर ऑलरेडी गिवन। तो हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर डॉलर्स का सिंबल गिवन है, तो हम यहाँ पर डॉलर्स में डाल देंगे, द आंसर विल ओनली बी 10। हाँ, बट अगर यहाँ पे डॉलर्स का सिंबल ना होता, फिर हम डॉलर्स लिखेंगे तो वो बिल्कुल ठीक होगा। फिर 10 खाली लिखेंगे तो वो गलत होगा। ठीक है, तो आपने इस तरह की मिस्टेक्स नहीं करनी बच्चों वाली। आपने प्रॉपरली उसको रीड आउट करना है, प्रॉपरली पढ़ना है, फिर उसको आपने आंसर करना है। नेक्स्ट है प्रेफर्ड केटरिंग अरेंजमेंट, विच इज ऑलरेडी रिटन हाफ बोर्ड, सो वी आर नॉट गोइंग टू do anything with it. We'll directly move on to the 5th question, and it says special dietary requirements. Like वो उससे पूछ रहा है कि आपकी कोई special dietary requirements हैं, तो उसने लिखा हुआ है no dash or red. It means there is something which is of red color and that person is allergic to it or something like that. So let's suppose the person says, well, I am a foodie but I'm allergic to red beans. इट मीन्स उसने कहा आई एम एलर्जिक टू रेड बीन्स, वो रेड बीन्स नहीं खाएगी। तो स्पेशल डाइटरी रिक्वायरमेंट्स में रेड ऑलरेडी लिखा हुआ है, नो भी लिखा हुआ है। इधर हम 5 में क्या लिख देंगे? बीन्स, लाइक दिस। ठीक है, तो उसका मतलब वो बीन्स नहीं खाने वाली। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेफर्ड रूम टाइप, सिंगल डैश। द आंसर कैन बी बेडरूम, द आंसर कैन बी bed sit. Can anyone over here tell me what does the word bed sit mean? Bed sit किसे कहते हैं? रीना एंड खदीजा, do you people know कि bed sit क्या होता है? Actually, I don't know, but maybe वो जो बेड के साथ एक वो जो पोर्शन होता है, maybe उसको कहते हैं। ओके, बेड ऐसे उसको नहीं कहते। बेड सीट के स्पेलिंग कुछ ही हुए, ठीक है। बेड सीट होता है एक ऐसा रूम जिसमें हर फैसिलिटी अवेलेबल है जो एक इंडिविजुअल को रिक्वायर्ड है टू लिव। बेड, अ स्मॉल किचन, वॉशरूम, न स्टोव। ठीक है, मतलब जो बेसिक नेसेसिटीज़ है वो प्रॉपरली हों। जैसे हम जिसको हम यूजुअली अटैच बाथ वाला जो रूम कहते हैं, वो भी एक प्रॉपर बेड सीट नहीं है उसको कह सकते, बिकॉज वहाँ पे किचन की चीज़ें नहीं है। एक छोटा सा स्टोव हो, छोटी सी कबर्ड हो, बेड हो एंड वॉशरूम, उसको कहते हैं बेड सेट, जिसमें हर वो चीज़ हो जो एक ज़िंदगी के लिए, एक इंसानी ज़िंदगी के गुजारने के लिए नेसेसरीज हमें आता है।
ठीक है, ऑलराइट। सो यहाँ पर सिंगल बेड सेट आ सकता है, बेडरूम भी मैंने आपको कहा, और सिंगल क्यूब आ सकता है, क्योंकि अगर हॉस्टल की बात हो रही है तो क्यूब हो सकता है यहाँ पे, या क्यूबिकल हो सकता है, ठीक है, या क्यूब खाली हो सकता है। You can also predict the answers in this way, but prediction is, you can say, okay, while you know, इन द बिगनिंग, क्योंकि आपको थोड़ा सा टाइम मिल रहा होता है ना टू लुक एट द क्वेश्चंस फ्रॉम डैश टू डैश, और फिर उसके बाद आपको पॉज मिल रहा है, डायरेक्ट लिसनिंग नहीं स्टार्ट हो जाती, डायरेक्ट आपको, आप कह लें, ऑडियो नहीं बोलना शुरू हो जाता और आप साथ ही साथ दोनों चीज़ें कर रहे होते हैं। तो पहले वो आपको टाइम देता है ताकि आप उन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से रीड आउट कर लें, फिर उसके बाद ऑडियो स्टार्ट होता है, ताकि आपने इससे इससे फ़ायदा क्या होगा आपको, इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर आपने शुरू में क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि ऑडियो में कौन-कौन सी बातें होने वाली हैं और आपको क्या-क्या चीज़ें उसमें से एक्सट्रैक्ट करनी है, बिकॉज़ ऑडियो विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट द थिंग्स व्हिच आर मेंशन्ड ओवर हियर इन द क्वेश्चन पेपर, दे विल बी डिस्कसिंग अ लॉट अबाउट द स्टफ related to accommodation, but we are just supposed to pick the things which are mentioned in the paper over here. So you should be ready for the essential and non-essential information. Some information is obviously going to be essential for you because you have to grab the uh, answers from the audio to fill the blanks over here in the paper. But जैसे मैंने कहा कि दैट विल नॉट बी द ओनली केस, वहाँ पे बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी होगी विच विल हेल्प you out in solving it. All right, so here we have the next question, question number 7. It says interest, and if you see that seventh question में उसने इंटरेस्ट में एक डैश एम्प्टी छोड़ा हुआ और एक इंटरेस्ट लिखा हुआ है, इट मीन्स देर आर पॉसिबली टू इंटरेस्ट ऑफ दैट पर्सन। बैडमिंटन से पहले वाला जो इंटरेस्ट है वो आपने यहाँ पर लिखना है। इट कैन बी अगेन, जैसे एक इंटरेस्ट जो है वो कोई स्पोर्ट्स है या कोई गेम है बैडमिंटन, तो प्रोबेबली जो दूसरा इंटरेस्ट है वो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, या इट कैन बी एनी अदर थिंग, इट कैन बी इंडोर गेम, इट कैन बी एनी आउटडोर गेम, इट कैन बी एनी, इट कैन बी स्मोकिंग ईदर, स्मोकिंग भी तो हो सकती है, लोगों का इंटरेस्ट होता है, कुछ भी हो सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, और यहाँ पर बड़ा से ईजी होगा इसको पिक करना, बिकॉज बैडमिंटन से पहले उसने जो भी कहा होगा वही उसका इंटरेस्ट होगा। And then the question number 8 says priorities in choice of hall to be with other students who are dash. So आपने ये भी सुन लिया कि वो क्या कह रहा है कि उन स्टूडेंट्स के साथ रहना है जो क्या है। अब जैसे लेट्स सपोज अगर उसने सब्जेक्ट में ऊपर बायोलॉजी लिखवाया था तो प्रोबेबली वो यहाँ पे कह सकती है that she wants to be with the students who are biologists, or probably if the person is quite, you can say, into studies or intelligent or hardworking, that person might say that to be with other students who are toppers. ठीक है, तो ये भी हो सकते हैं आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 9 इज टू लिव आउटसाइड द डैश। ये प्रेफरेंसेस है उसकी कि वो कहाँ का रहना चाहती है, तो वो ये यहाँ पे वो ये कह सकती है कि वो रहना चाहती है आउटसाइड द बालकनी, आउटसाइड द लिविंग रूम, वो जो भी कहेगी आप उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आंसर लिख देंगे। टू हैव अ डैश एरिया फॉर सोशलाइजिंग, शी नीड सम स्पॉट और पर्टिकुलर एरिया जो सोशलाइजिंग के लिए यूज होगा। ठीक है, तो आप जो भी ऑडियो में सुनेंगे यहाँ पे लिखेंगे। कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा बातें बताना चाहूँगी स्टूडेंट्स, देयर माइट बी सम मैनिपुलेशंस इन योर ऑडियो। लेट्स सपोज अनु के लिए जो उसने बताया है कि ये अनु ने बताया कि मुझे ये चीज़ें चाहिए फॉर अकोमोडेशन पर्पस। सो फ़ोन नंबर व्हाट्स एंड पे उसको कहता है कैन आई नो अबाउट योर फ़ोन नंबर सो दैट व्हेनेवर आई गेट वैकेंसी अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स आई विल कॉल यू। और ये लास्ट क्वेश्चन है। And Anu says, why not? Sure, please write it down. Anu says 45319864 आपने फटाफट से इसको लिख लिया, ठीक है, और आपने देखा मेरे 10 क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं, आपने पेज पर टाल दिया जो कि आपका सेक्शन नंबर 2 पर चल गया, बट अभी ऑडियो चल रहा था, ऑडियो भी खत्म नहीं हुआ। फिर बाद में अनु को याद आएगा, अनु कहेगी होश में तो गलत नंबर लिखवा दिए, ये ऑडियो में नहीं वो बोल रही होगी, ठीक है। Anu kehegi, did I say 45319862? And the person will say, yes, this is the number I wrote while you were speaking. Anu will be apologizing after that. Anu might say, well, I'm sorry, this is my old phone number. I recently changed my phone and got a new number and I'm not used to it.
सो कैन यू प्लीज री राइट इट। और तब तक आप सेक्शन नंबर 2 पढ़ रहे होंगे, आप कहोगे सेक्शन नंबर 1 के 10 के 10 सवाल तो मैंने अटेम्प्ट कर लिए हैं और ये आंसर तो था ही नहीं 10वें का, तो वो चेंज करवा के उसको कहेगी 13289765 ये असल उसका फोन नंबर है। अगर जिसने ये लिखा होगा उसको इसके ही नंबर मिलने हैं। तो स्टूडेंट्स यू नीड टू बी वेरी केयरफुल ऑन क्वेश्चन नंबर 10 क्योंकि देयर आर पॉसिबिलिटीज कि क्वेश्चन नंबर 10 में जरूर कोई ना कोई चेंजिंग्स हो सकती हैं। इफ इन केस क्वेश्चन नंबर 10 फोन नंबर नहीं है, क्वेश्चन नंबर 10 एड्रेस भी हो सकता है। कैन यू, अच्छा लेट्स सपोज अनु के लिए उसने एड्रेस का ऑप्शन रखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10। एड्रेस में वो उसको कहते हैं कि कैन यू राइट डाउन योर एड्रेस सो दैट आई कैन सेंड ऑल द डिटेल्स और सेंड यू द वाउचर एट योर होम, ठीक है, बाय पोस्ट। ऑलराइट, अनु सेज यस ऑफ कोर्स इट्स 24D Kingston Road। उन्होंने ये बता दिए, आपने अगेन क्वेश्चन नंबर 10 अटेम्प्ट किया, देन यू टर्न टू द नेक्स्ट सेक्शन। बट अनु को फिर याद आता है that this is not my current address, this was the old one। फिर अनु कहेगी did I say 24D Kingston Road? And the person will say yes, you said 24D Kingston Road। She will say sorry, I just moved to the new block and surprisingly it's 24A Kingston Road। इसका मतलब है सिर्फ D चेंज करके A लगा देना, बाकी आंसर वही है। तो ऑडियो आपको पजल कर सकता है, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल वाइल अटेम्प्टिंग टू फिल इन द ब्लैंक्स। ये पजलिंग सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स में ही है, ठीक है, बाकी फिल इन द ब्लैंक्स अटेम्प्ट करना कोई मुश्किल भी नहीं है, इट्स ईजी, बट यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट द limit of words which is given to you in the main question। and students whatever the question paper carries information, क्योंकि अगर आप नोट करें तो सेक्शन नंबर 1 जब स्टार्ट हुआ था यहाँ से लेकर यहाँ तक काफ़ी कुछ था पढ़ने के लिए, ठीक है, आपने सारा पढ़ के फिर क्वेश्चन नंबर 1 पर आना है, क्योंकि इससे पहले उसने सारा बताया होगा कि आपके नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होने चाहिए, आपने कितने वर्ड्स में इसको अटेम्प्ट करना है, इसमें आपने नंबर्स कितने लगाने हैं और सारे कैश करने की बातें उसने स्टार्टिंग में आपको बता दी हैं। सो जो सारी जो कैश करने की बातों के बारे में जो मैं कह रही हूँ, आपने इसको अगर शुरू में पढ़ा होगा तो आपके लिए इसको अटेम्प्ट करना बहुत ज़्यादा ईजी होगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। एंड येस ऑफ कोर्स ऐसा भी नहीं है स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज आपको ऊपर क्वेश्चन में लिमिट जो दी गई है दैट इज राइट नो मोर देन 3 वर्ड्स इन योर आंसर्स। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपके सारे आंसर्स में 3 वर्ड्स होना लाजमी है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 3 वर्ड्स की उसने आपको लिमिट दी है, लेकिन अगर आप एक वर्ड में भी आंसर किसी का बनता है लिख देते हैं तो वो ठीक होगा, वो 3 वर्ड्स की लिमिट के अंदर ही फॉल कर रहा है। बट येस जिसमें 3 वर्ड्स होंगे आप उसको 4 नहीं लिख सकते। अब जैसे मेरे पास है एक क्वेश्चन, यू विल बी वेयरिंग अ कोट मेड ऑफ लेदर टुनाइट, ठीक है, व्हाट यू आर गोइंग टू वेयर टुनाइट, आगे है डैश, और आपको जो लिमिट दी गई है वर्ड लिमिट वो है 2 वर्ड्स में आपने इसको अटेम्प्ट करना है। और ऑडियो में बोला गया था अ कोट मेड ऑफ लेदर, आप इसको किस तरह लिखोगे कि 2 वर्ड्स में लिखा जाए, अदरवाइज ये 5 वर्ड्स बनते हैं, आ कोट मेड ऑफ लेदर 5 वर्ड्स, ठीक है। तो आपने अ कोट मेड ऑफ लेदर को किस तरह कट शॉर्ट करना है कि ये जो है ये 2 वर्ड्स में शिफ्ट हो जाए। I think it should be leather coat। ऑफ कोर्स यस, आपने इसको इस तरह से ही इन चीज़ों पे वर्क करना है कि अगर ऑडियो में ज़्यादा नंबर ऑफ वर्ड्स बन रहे हैं तो आपने उसको खुद से ही चेंज कर लेना है। यूजुअली स्टूडेंट्स इस चीज़ को इतना फोकस नहीं करते, बट येस ये फोकस की चीज़ है, क्योंकि स्टूडेंट्स देखें लिस्टिंग इतना मुश्किल नहीं है, इसके जो रूल्स है ना ये इसको मुश्किल बनाते हैं। अभी तो मैंने आपको ये बताया ही नहीं कि आपने आंसर्स किस तरह से शिफ्ट करने हैं, अभी सिर्फ हमने ब्लैंक्स को डिस्कस किया है। एंड येस ऑडियो आपको हर चीज़ बता रहा होता है, आपको हर चीज़ से गाइड कर रहा है कि आपने इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। जैसे लेट्स सपोज ऑडियो को सबसे पहले गाइड करेगा, अगर आप सेक्शन में 1 अटेम्प्ट कर रहे हैं, ऑडियो विल बी सेइंग इट इन दिस वे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव अ टाइम, पहले तो इस तरह से आपको ग्रीट किया जाएगा, वेलकम टू द IELTS एग्जामिनेशन, यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट योर वेरी फर्स्ट टेस्ट ऑफ IELTS व्हिच इज द लिस्टिंग मॉड्यूल। लेट्स स्टार्ट आवर लिस्टिंग टेस्ट। फॉर दिस पर्पस लेट्स बिगिन विद सेक्शन नंबर 1। First of all, you have a time to look at questions 1 to 5. After saying this, there will be a pause of 30 seconds. ठीक है, make use of those 30 seconds
टेक एडवांटेज ऑफ इट। उन 30 सेकेंड्स में आप 1 to 5 क्वेश्चंस को अच्छी तरह से पढ़ लें, ठीक है, और उसको हाईलाइट कर लें, उसमें कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट कर लें। मैं ये क्यों कह रही हूँ पहले से पढ़ लें, ताकि व्हेन यू आर गोइंग टू लिसन द ऑडियो आपको पहले से ही पता हो कि आपने किन क्वेश्चंस के आंसर को वहां से ग्रैब करके लिखना है अपनी आंसर शीट के ऊपर। तो जब आपको ये बात पता होगी कि आपने आंसर शीट पे क्या चीज लिखनी है और आपको क्या चीज वहां से ऑडियो से पिक करनी है, तो चांसेस ही नहीं है कि आप गलती कर पाए या आपका फोकस इधर उधर हटे। बिकॉज असल चीज जो है आपका फोकस जो है वो रहे उसके ऊपर। तो फोकस किस तरह से रहेगा, वो इस तरह से ही रहेगा कि अगर आपने उसको पहले से पढ़ के रखा होगा और आप पहले से प्रिपेयर्ड होगे कि मैंने यहाँ पर क्या क्या चीजें अटेम्प्ट करनी है और क्या क्या चीजें एक्सट्रैक्ट करनी थी अपने ऑडियो में से, ठीक है। सो इसी तरह से फिर जब आपका 30 सेकेंड्स ओवर हो जाएंगे ऑडियो बोलना शुरू हो जाएगा और वो 5 क्वेश्चन से रिलेटेड पहले ऑडियो बोलेगा, फिर 5 क्वेश्चन से रिलेटेड जब ऑडियो हो जाएगा खत्म, फिर अगेन ऑडियो विल से नाउ यू हैव अ टाइम टू लुक एट क्वेश्चंस 6 to 10। फिर पॉज मिलेगा आपको 30 सेकेंड्स का। उस 30 सेकेंड्स में आप 6 to 10 क्वेश्चंस को पढ़ लें ताकि आपको पहले से ही पता हो, फेमिलियर हो जाए क्वेश्चन से कि आपको ऑडियो में से कौन सी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है, ठीक है। फिर आप जब उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, फिर सेक्शन 1 जब आपका कंप्लीट हो जाएगा आपको वो कहेगा, आपने ऑडियो को वेट करना है कि ऑडियो आपको कहेगा सेक्शन नंबर 2 पर चले जाओ। खुद से नहीं जाना, बिकॉज देर माइट बी सम थिंग्स विच कैन बी चेंज्ड एट द एंड, जो आपको कह सकते हैं सॉरी आई डिड इट रॉन्ग, आई सेड इट रॉन्ग, प्लीज चेंज इट और ब्ला ब्ला ब्ला। उसमें जैसे मैंने कहा ऑडियो आपको गाइड करेगा सेक्शन नंबर 2 पे कब जाना है। तो फिर आप जब आप क्वेश्चन नंबर 10 अटेम्प्ट कर चुके होंगे, audio will be saying you that this is the end of section number 1 in your IELTS test. Now we'll move to section number 2। तब आप पेजेस पर टालेंगे, ठीक है। जब आप सेक्शन नंबर 2 पे जाएंगे फिर वो आपको पहले गाइड करेगा सेक्शन नंबर 2 किसके बारे में। लेट्स सपोज वो बताता है there is a tour guide who is going to guide you about a tour to a park. For this purpose, first of all, you have a time to look at questions 11 to 15। फिर आप 11 to 15 क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर उससे रिलेटेड ऑडियो प्ले होगा एंड सो ऑन। दिस स्प्लिटिंग ऑफ ऑडियोज प्रोसीड्स अप टू सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 तक आपको 2 हाउस में ऑडियो सुनाई दी जाएगी अपने लिस्टिंग एग्जाम की, बट ऑडियो विल बी प्लेड वंस ओनली, द ऑडियो विल नॉट बी रिपीटेड। सो आपको एक ही दफा में सब कुछ फोकस करना होगा। बट ये स्टूडेंट्स, मैंने कहा ये ऑडियो स्प्लिट वाला जो केस है दैट विल बी ओनली टिल सेक्शन नंबर 3। देन व्हाट अबाउट सेक्शन नंबर 4? सेक्शन नंबर 4 में ऑडियो विल नॉट बी स्प्लिट इन 2 हाफ्स, ठीक है। ऑडियो एक ही गो में सारा प्ले होगा। बट इस केस में क्या होगा, और सेक्शन नंबर 4 के स्टार्ट में, लेट्स मूव टू लास्ट सेक्शन ऑफ द IELTS लिस्टिंग एग्जाम। First of all, you have a time to look at questions 31 to 40। बाकी सेक्शन में आपको 30 सेकेंड्स के 2 दफा पॉज मिल रहे थे, बट इन केस ऑफ सेक्शन नंबर 4 आपको 1 मिनट का इकट्ठा पॉज मिल जाएगा कि आप 10 के 10 सवाल को पढ़ लें। एंड दिस इज समहाउ बिट ट्रिकी क्योंकि सेक्शन नंबर 4 में थोड़ी सी स्पीड भी तेज हो जाती है और लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी बढ़ जाता है और ऑडियो भी स्प्लिट नहीं हुआ मिलता। तो सेक्शन नंबर 4 में यूजुअली चांसेस होते हैं कि आपका फोकस इधर उधर हो जाए, ठीक है। और स्टूडेंट्स, आज मैंने सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स ही करनी थी, कल इंशाल्लाह ताला हम ज़्यादा करेंगे, MCQs करेंगे, मैचिंग्स करेंगे और अगर हमारे पास टाइम हो तो मैप्स को भी करेंगे। सो आई एम गोइंग टू सेंड द टास्क टू यू पीपल, ठीक है। वो टास्क क्या होगा, आई सेंड यू द टेस्ट जिसके साथ उसके ऑडियोज़ भी होंगे। आपने उसके ऑडियोज़ को सुनना है और ऑडियोज लेबल्ड होंगे। सेक्शन 1 के साथ पार्ट 1 लिखा होगा, 2 के साथ पार्ट 2 होगा, 3 के साथ पार्ट 3 होगा और पार्ट 4। आप कोशिश करेंगे जितना आप कर सकें आप उसको अटेम्प्ट कर लें। अगर सारा अटेम्प्ट नहीं हो पाता तो भी कोई मसला नहीं है। बाकी ये है कि अच्छी बात होगा अगर आप सारा एक बार गो थ्रू कर लेंगे, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि लिस्टिंग टेस्ट होता कैसे है। And yes, I'm also going to send you the vocabulary words, which I already promised in the previous lecture. कि I'll be sharing vocabulary words after every lecture, so that आपकी vocabulary के words भी साथ से prepare होते जाएं। And I'll be taking a surprise test after few days, and I'll be checking if you people are doing it on time or not. And yes, vocabulary words को improve करने का तरीका सिर्फ ये नहीं है कि उनको learn करके छोड़ दें, उनका uses सीखना है, उनको अपने sentence में बोलना सीखना है कि सेंटेंस में उनका किस तरह से यूज़ आए। आपने अगर ऐसे राइटिंग करनी है तो वो किस तरह से करनी है, उसमें उसका यूज़ कैसे करना है।
Alright students, that was all related from today's lecture. Is there any question? तो आप ज़रूर पूछ लें. I'm waiting for the questions, please. No, I don't have any question. Alright, is there any other question by anyone of you? खदीजा से तो बिल्कुल भी आज बात नहीं हो पाई. खदीजा, what is the problem? Still no answer. Alright then, that's all for today. Inshallah, we'll meet tomorrow with the new lecture and new tactics and strategies. Till then, take care. Allah Okay, bye. Hafiz. Allah Hafiz. Thank you. Most welcome.